Hello and welcome in this online video lecture series for the subject C303, that is surveying. So in the previous videos we have seen the various concepts related to surveying, that is what is surveying, what are the different types of surveying. We also saw different instruments which are used in surveying and different methods how we can do surveying. We also saw different types of surveying, that is chain surveying, compass surveying. After that we saw plane table surveying, that what is plane table surveying, and in the previous video we saw different concepts related to leveling. So in this video we will see some more concepts related to leveling. So in this video basically we will start with the revision of the previous video. First we will see what is leveling, that all we have studied in the previous video also. Then we will see the different methods of leveling, how leveling can be done. Then we will see methods of direct leveling, how we all have studied this, but we will just have a quick review or revision. After that we will see what is reciprocal leveling. After that we will solve some numericals on reciprocal leveling, that how reciprocal leveling is done on field, how you can solve the different numericals on reciprocal leveling. After that we will see profile leveling, how profile leveling can be done, what is profile leveling, why profile leveling is done, where profile leveling is imparted, all that we will see in this video. After that we will see the last method of leveling, that is the cross sectioning of leveling, how cross sectioning is done. So all that we will cover in this video. These all this we have seen in the previous video also, and we will see all these levelings in detail in this video. So in the previous video we saw that what is leveling. So leveling is a branch of surveying, the object of which is to find the elevation of given points with respect to a given or assumed datum, or leveling is done to establish points at a given elevation or at different elevations with respect to a given or assumed datum. So हमने देखा था कि लेवलिंग हम करते हैं दो कारणों से. हम लेवलिंग क्यों करते हैं, उसके पीछे दो कारण हैं. फर्स्ट वन इज, पहला कारण है टू फाइंड द एलिवेशंस ऑफ गिवन पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन और अज्यूम्ड डेटम. पहला कारण है हमें कोई जो गिवन पॉइंट्स हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कुछ पॉइंट्स हैं, उनका हमें एलिवेशन निकालना होता है. इसका मतलब कि उनकी हाइट निकालनी होती है. सपोज मुझे कोई रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी सर्वेइंग मुझे करनी है. सो कहाँ कितनी कटिंग होनी है, कहाँ फिलिंग होनी है, इसके लिए मुझे सारे पॉइंट्स का एलिवेशन निकालना ज़रूरी है. हमने एक रोड का एग्जाम्पल लेके समझा था. एलिवेशन जो भी हम मेजर्स करते हैं सर्वे के अंदर, वो सभी हम मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, यानी कि हमारा जो डेटम होता है वो मीन सी लेवल होता है. सेकेंड पॉइंट वॉज टू एस्टेब्लिश पॉइंट्स एट अ गिवन एलिवेशन और ए डिफरेंट एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन और अज्यूम्ड डेटम. सेकेंड जो लेवलिंग का ऑपरेशन था, जो लेवलिंग का जो फंक्शन था, वो था हमें कुछ पॉइंट्स एस्टेब्लिश करने होंगे एक गिवन या अज्यूम डेटम के रिस्पेक्ट में डिफरेंट एलिवेशंस पर, यानी कि कुछ हाइट पे अगर हमें कोई पॉइंट एस्टेब्लिश करना है, यह पॉइंट नहीं है, मुझे उस हाइट पे पॉइंट को एस्टेब्लिश करना है. सपोज अगर मैं आपसे बोलूं मीन सी लेवल पे 100 मीटर पे मुझे एक पॉइंट दीजिए इस जगह पे. सो आप एक पॉइंट को एस्टेब्लिश करेंगे, वो आप किसकी मदद से करेंगे, लेवलिंग की मदद से. नेक्स्ट वी सॉ डिफरेंट मेथड्स ऑफ लेवलिंग. हमने बाद में लेवलिंग करने के तरीके देखे, या कौन कौन से तरीके से हम लेवलिंग कर सकते हैं वो हमने देखा था. So first one was barometric leveling. This uses the phenomena that difference in elevation between two points is proportional to the difference in atmospheric pressure. हमने देखा था कि बैरोमेट्रिक लेवलिंग जो है वो किस पर डिपेंड होती है, किस प्रिंसिपल पर डिपेंड होती है. वो डिपेंड होती है कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, वो उनके हाइट या उनके एलिवेशन के प्रोपोर्शनल होता है. A barometer therefore may be used and the readings observed at different points will lead a measure of the relative elevations of these points. सो बैरोमीटर, जैसे कि हमें पता है, बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं. सो हम डिफरेंट पॉइंट्स पे प्रेशर मेजर करेंगे और उसी प्रेशर की मदद से हम वहाँ की हाइट के डिफरेंस निकाल सकते हैं. सो दिस वाज बैरोमेट्रिक लेवलिंग. बैरोमीटर की मदद से जो लेवलिंग होगी वो बैरोमेट्रिक लेवलिंग होगी. और बैरोमीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, बैरोमीटर से हम प्रेशर मेजर करते हैं. नेक्स्ट वाज ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग.
So trigonometric leveling is the process of leveling in which the elevations of points are computed from the vertical angles and horizontal distances measured in field. So trigonometric leveling, जैसा कि हमें नाम से ही दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है। हम जानते हैं, हमने बचपन से ही स्कूलिंग में ही हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथ्स की जिसमें हम ट्राइंगल्स की ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं। हम क्या करते थे, हमने एक चैप्टर पढ़ा होगा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमें कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस पता होते थे और एंगल्स पता होते थे। हम कुछ वर्टिकल हाइट्स उसमें निकालते थे, या वर्टिकल हाइट दी होती थी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते थे। हम ये ट्रिग्नोमेट्री जो है चैप्टर वो हमने स्कूलिंग में ही पढ़ा है। अब उसी का एप्लीकेशन हम सिविल इंजीनियरिंग में कैसे कर सकते हैं। हम कुछ एंगल्स मेजर करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, और कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे, जो भी फिजिबल होगा उसी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस को यूज करके। So this trigonometric leveling we will study in detail in chapter 2, that is theodolite. Why? Because this involves measurement of angle, and measurement of angle can be done with the help of theodolite. So this we will study in chapter 2. So हमने देखा trigonometric leveling जो है trigonometric applications को use करेगी। Third one was spirit leveling या फिर direct leveling. So it is that branch of leveling in which the vertical distances with respect to a horizontal line may be used to determine the relative difference in elevation between two adjacent points. So spirit leveling या फिर direct leveling ये ऐसी leveling है is that branch of leveling in which जिसमें हम जो vertical distance जो हमें निकालनी है वो हम एक horizontal line के respect में निकालेंगे, और ये horizontal line जो है ये perpendicular रहती है to the direction of gravity। जैसे कि हमने देखा था जो line of sight है that was perpendicular to the direction of gravity, और उसी की respect में हमने अलग अलग रीडिंग्स निकाली थी, जैसे कि फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, और फिर उसकी मदद से हमने अलग अलग पॉइंट्स का एलिवेशन या फिर रिड्यूस लेवल जिसको हमने आरएल से डिनोट किया था वो हमने निकाला था। दिस ऑल वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो। A horizontal line of sight tangent to level surface at any point is readily established by means of spirit level. So this we have seen in the previous video, all these methods of leveling. Next, we also saw different methods of direct leveling. In the previous slide, which we saw was the methods of leveling, and in this, which we will see in this slide, these are the methods of direct leveling. So, direct leveling methods of direct leveling includes differential leveling, profile leveling, cross sectioning, reciprocal leveling, and precise leveling. So, this differential leveling we have seen in the previous video in detail. Now we will see profile leveling and cross sectioning in detail in this video. Okay, so now we have reciprocal leveling. So reciprocal leveling, when it is necessary to carry a leveling across a river, ravine, or any obstacle requiring a long side between 2 points so situated that no place for the level can be found from which the lengths of foresight and backside will be approximately equal, reciprocal leveling must be used to obtain accuracy. अब क्या बोल रहा है, अगर मैं लेवलिंग कर रहा हूं, जैसे कि मैंने अभी तक जो लेवलिंग देखी थी डायरेक्ट लेवलिंग, उसमें बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आया था। सो व्हाट आई विल डू हियर, अगर मेरे को कोई ऑब्स्टेकल मिल गया, सपोज जैसे डेफिनेशन में लिखा है रिवर और एनी ऑब्स्टेकल रिक्वायरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसा कोई ऑब्स्टेकल आ गया है बहुत बड़ा सा जिसके कारण कि मैं लेवलिंग नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बिकॉज no place for the level can be found from which the lengths of foresight and backside will be even approximately equal. अभी तक जो भी हम डिस्टेंस ले रहे थे, उस जो भी हम लेवलिंग कर रहे थे उसमें फोरसाइड और बैकसाइड लगभग इक्वल होता था। सपोज 1.5 मीटर तो अगला होता था 1.51, 52 और लगभग रेंज बराबर होती थी। बट अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए कि वो दोनों अब थोड़ा बहुत भी इक्वल नहीं है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, सो वहाँ पे हम लेवलिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो अब हम ऐसी जगह क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। सो अभी हमने ये देखा रेसिप्रोकल लेवलिंग हम कब करेंगे, जब बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, जैसे कि रिवर या कोई भी ऑब्स्टेकल हो सकता है जिसके कारण कि हम लेवलिंग नहीं कर पाते हैं, और दोनों में डिफरेंस जो है वो इतना ज़्यादा है कि बैक साइड और फोर साइड जो आप ले रहे हैं दोनों लेंस के बीच में, उनमें भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप लेवलिंग जो डायरेक्ट लेवलिंग थी वो आप नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट यू विल डू हियर, वी विल अडॉप्ट द मेथड ऑफ लेवलिंग दैट इज रेसिप्रोकल लेवलिंग। अब रेसिप्रोकल लेवलिंग के कुछ और एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि रेसिप्रोकल लेवलिंग इज आल्सो डन टू एलिमिनेट एरर इन इंस्ट्रूमेंट एडजस्टमेंट। इंस्ट्रूमेंट एडजस्टमेंट के कारण जो एरर होता है वो एलिमिनेट हो जाता है रेसिप्रोकल
लेवलिंग में। ये कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे जब देखेंगे मेथड ऑफ रेसिप्रोकल लेवलिंग। नेक्स्ट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब जैसे कि हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन मतलब कि क्या, लाइट जो है अपना पाथ उसका डेविएट हो जाता है। अब लाइट का पाथ अगर डेविएट हो गया तो लाइन ऑफ साइट है उसका भी पाथ थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, उसके कारण कुछ एरर हमारे सर्वेइंग में या एरर जो हम मेजरमेंट जो कर रहे हैं उसमें एरर कुछ आ जाता है। रेसिप्रोकल लेवलिंग में वो एरर जो है एलिमिनेट हो जाता है। एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थ कर्वेचर जैसे कि हमें पता है कि अर्थ में कुछ कर्वेचर है, अर्थ कर्व्ड होता है तो उसके कारण जो एरर होता है ये दोनों एरर, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, बोथ आर एलिमिनेटेड इन रेसिप्रोकल लेवलिंग। नेक्स्ट इज वेरिएशन इन द एवरेज रिफ्रैक्शन। जैसे कि अभी मैंने बताया रिफ्रैक्शन के कारण जो वेरिएशन आएगा वो भी एलिमिनेट हो जाता है। सो हमने देखा कि रेसिप्रोकल लेवलिंग ऐसी लेवलिंग है जिसको हम कहाँ करेंगे अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया जैसे कि रिवर। उसके हमने 3 एडवांटेजेस देखे। रेसिप्रोकल लेवलिंग इज ऑल्सो डन टू एलिमिनेट, या क्या और क्या एलिमिनेट कर देता है, एरर इन इंस्ट्रूमेंट एडजस्टमेंट, combined effect of Earth's curvature and refraction of the atmosphere, and last was variation in the average refraction. So now we will see how reciprocal leveling is done, and we will derive the formula for the difference in height in reciprocal leveling, that how we can determine the difference between the height and how we can do the leveling using reciprocal leveling. So what we will do basically, first we will set up the instrument at the one side of obstacle or one side of river. So first we have set up the instrument at A. So this is A. Okay. And we kept the staff at 2 positions. First we will keep the staff at this near A, and we will set up the staff at the other side of river or other side of obstacle at B. So what we have done, first we have kept the instrument at A and we have kept the staff near A, and the second position of staff is near at B. So there are 2 positions of staff. First was at A, means near A, and the second position of staff is at B. In the second case, next what we will do, we will put the staff at A and near B, and the instrument we have shifted at B. So in the second case we have shifted the instrument at the other side of river or other side of obstacle, that is B, and again we have kept the staff first at near B and second at A. So basically what we are seeing, we are interchanging the position of instrument and marking, or we are recording the readings of staff at both the same station, that is A and B. Just we have interchanged the position of instrument. So what we will do, first for the first set of the level, that means when this instrument is at A, for that on A, when the staff is at A, so the reading is HA, and the reading on the point B is HB minus E. E is the error due to refraction. How it is eliminated we will see. So when the instrument is at A, so the reading near A is HA, small ha, and the reading on B, that is HB minus E. One question may arise in your mind, that why we are taking the error at B only, why we are not taking the error at A, because A is very near, so the error will be very less. That's why we are taking the error on only B side, because that is far away from instrument. So on A the reading will be HA, and on B it will be HB minus E. Why we are taking error on only B? Because it is very far from A. So on A reading is HA and on B it is HB minus E. So the true difference in elevation, the difference between both these elevation, इनके बीच के जो height का जो difference होगा वो कैसे हम बता सकते हैं, that let जो difference है elevation का, that is capital H, this I have written. So this will be equals to HA minus HB minus HE. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, स्टाफ रीडिंग का जो डिफरेंस होगा, वही इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिफरेंस होगा. सो ए पे जो स्टाफ की रीडिंग थी दैट इज HA, आई हैव रिटन दिस HA, और बी पे जो रीडिंग थी, रीडिंग एट A माइनस रीडिंग एट B, सो दैट इज HB माइनस E. मैंने क्या करा, ए पे इंस्ट्रूमेंट रखा, ए पे जो रीडिंग थी दैट इज HA माइनस बी पे जो रीडिंग थी दैट इज HB माइनस E.
E इज एरर इसलिए बस एच बी में लिया है बिकॉज एच बी जो बी पॉइंट है वो इंस्ट्रूमेंट से दूर है, सो वहां पे रिफ्रैक्शन के कारण एरर ज्यादा होगा। अब मैं क्या करूंगा, नाउ आई विल शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट टू बी। अब मैं इंस्ट्रूमेंट को बी पे शिफ्ट करूंगा। ओके, नाउ आई विल शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट। अब मैं बी पे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करूंगा। सो मेरा इंस्ट्रूमेंट बी पे यहाँ कुछ रखा हुआ है। नाउ ऑन ए पे जो रीडिंग होगी दैट इज एच ए डैश। अब मैं जो सेकंड रीडिंग ले रहा हूँ उसमें मैं डैश से डिनोट करूंगा, सो दैट इज एच ए डैश। अब इंस्ट्रूमेंट से जो कौन सा पॉइंट दूर है ज्यादा, ए, सो ए पे एरर आएगा रिफ्रैक्शन के कारण, उस एरर को मैंने ले लिया ई, सो दैट इज एच ए डैश माइनस ई। बी पे इंस्ट्रूमेंट रख के जो ए पे रीडिंग आई दैट इज एच ए डैश माइनस ई। सिमिलरली बी पे जो रीडिंग आएगी दैट विल बी इक्वल टू एच बी डैश। दोनों जगह जो मैंने रीडिंग ली उसको मैंने डिनोट कर दिया डैश के साथ। ए पे जो रीडिंग आई दैट इज एच ए डैश माइनस ई। ई इसलिए लिया बिकॉज दिस वाज फार अवे फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, सो रिफ्लेक्शन का जो एरर था वो मैंने बी में ए में अकाउंट कर लिया, और बी पे कोई एरर नहीं आएगा रिफ्लेक्शन के कारण बिकॉज इट इज वेरी नियर। सो बी पे जो रीडिंग हो गई दैट इज एच बी डैश। अब सिमिलरली जो डिफरेंस मैंने जैसे पहले निकाला था वो मैं निकालूंगा। सो कैपिटल एच विल बी इक्वल टू एच ए डैश, ए पे जो रीडिंग है एच ए डैश माइनस ई माइनस एच बी डैश। ये मैंने डिफरेंस निकाल लिया जब इंस्ट्रूमेंट मैंने बी पे रखा है। अब जो डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स का बी और ए के बीच में वो तो इक्वल ही रहेगा, भले ही मैं इंस्ट्रूमेंट ए पे रखूं या इंस्ट्रूमेंट बी पे रखूं, ये डिफरेंस दोनों जगह बराबर रहेगा। सो इस केस में जो एच आ रहा है ये कैपिटल एच, और ये जो पिछले केस में जो आया था दैट इज कैपिटल एच, ये दोनों हमेशा इक्वल ही रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, दैट मींस आई विल ऐड बोथ दिस इक्वेशन ऑफ कैपिटल एच। सो एच प्लस एच विल बी इक्वल्स टू 2h एच ए, दिस माइनस ई minus minus e will become plus e, and here we are having minus e, so minus plus will cancel, and next the formula I will get is capital H will be equals to HA minus HB. This is HA minus HB, and this is H, this E will cancel, so I will get HA dash minus HB dash. So I will get the formula as capital H equals to HA minus HB plus HA dash minus HB dash by 2. So in general way, if I want to write this formula, so I can write the two difference in elevation, that means this capital H, तो difference है elevation में दोनों points के बीच का, therefore is equal to the mean of two apparent differences in elevations obtained by reciprocal operations. वो क्या होगा, therefore is equal to mean of two apparent differences, तो apparent differences जो हैं दोनों के बीच में उसका जो mean होगा reciprocal observations का वही true difference in elevation होगा। that means capital H equals to स्मॉल एच ए माइनस स्मॉल एच बी, पहले जो डिफरेंस था वो और जो बाद में डिफरेंस उन दोनों का एवरेज। सो इन दिस वे वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर रेसिप्रोकल लेवलिंग। सो नाउ वी विल सी अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल लेवलिंग। अब हम एक न्यूमेरिकल की मदद से और समझेंगे रेसिप्रोकल लेवलिंग कैसे होता है। सो द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग नोट्स रेफर टू अ रेसिप्रोकल लेवल्स टेकन विद वन लेवल, फाइंड द ट्रू एलिवेशन ऑफ क्यू। दो एलिवेशंस लिए हैं, हमें ट्रू एलिवेशन बताना है क्यू का। सो ये रीडिंग्स दिए हैं। फर्स्ट सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट रखा था पी पे, तो पी पे जो रीडिंग आई जो हम ए और बी से हमने डिनोट करा था वो यहाँ पी और क्यू के फॉर्म में है। जो पास में जो रीडिंग है दैट इज 1.824, दूर जो रीडिंग है दैट इज 1.748। सिमिलरली क्यू पे जब हमने इंस्ट्रूमेंट रखा तो दूर वाली रीडिंग वॉज 0.928 एंड पास वाली वॉज 1.606। क्यू पे जो इंस्ट्रूमेंट है तो क्यू स्टेशन विल बी नियर, और RL P पॉइंट का RL दिया दैट इज 126.386 मीटर। सो हमें रेसिप्रोकल लेवलिंग से पता है दो रीडिंग दी हैं दो इंस्ट्रूमेंट्स पे, सो वी विल डू। सो व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फ्रॉम P, मतलब जब हमने इंस्ट्रूमेंट रखा था P पॉइंट पे, तो डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन P एंड Q, एलिवेशन के बीच में डिफरेंस क्या होगा। सो ओके, सो डिफरेंस विल बी when instrument is P, so 2.748 minus 1.824, so that will come as 0.924 मीटर। पहले ऑब्जर्वेशन में जो डिफरेंस आया, मैं जो हमने एच ए माइनस एच बी निकालना था वो इस केस में जो आया है दैट इज
0.924 मीटर। पहला डिफरेंस आया है 0.924 मीटर। सेकेंड, when the observations are taken from Q, जब Q पे हमने इंस्ट्रूमेंट रखा, so difference in elevation between P and Q equals to 1.606 minus 0.928, so that will come as 0.678 मीटर। तो हमने दोनों इंस्ट्रूमेंट्स पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पे जब हमने अलग अलग पोजिशंस पे जब हमने इंस्ट्रूमेंट रखा या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पोजिशंस के जो डिफरेंस है रीडिंग्स का वो हमने निकाल लिया। पहले केस में हमारा आया 0.924, दिस आई हैव रिटन एज 0.924 and in second case it is 0.678 meter. So true difference in elevation, true difference in elevation हम कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों का एवरेज। अभी हमने देखा था फॉर्मूला वॉज HA माइनस HB प्लस HA डैश माइनस HB डैश बाय 2। सो हमने सपोज ये HA माइनस HB है, ये HA डैश माइनस HB डैश है। सो इन दोनों का अगर मैं अगर एवरेज निकालूंगा सो मुझे कैपिटल H की वैल्यू मिल जाएगी। सो जो ट्रू डिफरेंस जो है दैट इज केम है वो हमें जो मिला है दैट इज 0.801 मीटर। अब अगर मुझे निकालना क्या था क्वेश्चन में, फाइंड द ट्रू एलिवेशन ऑफ Q। अगर मुझे Q का ट्रू एलिवेशन निकालना है सो दैट विल बी इक्वल्स टू RL माइनस डिफरेंस इन हाइट। सो RL जो मुझे दिया गया था दैट वाज 126.386 मीटर माइनस 0.801 मीटर, जो हमने ये कैपिटल H की वैल्यू निकाली है। सो वो मुझे मिल जाएगा 125.585 मीटर। सो इस प्रकार मैंने ट्रू एलिवेशन ऑफ Q जो था वो मैंने निकाल लिया। सो फिर से देखते हैं क्वेश्चन में मुझे अलग अलग दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस के लिए दो अलग अलग स्टाफ की रीडिंग दी थी। सबसे पहले जो स्टाफ रखा गया था वो रखा गया था P पोजीशन पे, तो मैंने P पोजीशंस पे दोनों स्टाफ की डिफरेंस निकाला, वो मुझे मिला 0.924। फिर मैंने सेकंड पोजीशन के लिए डिफरेंस निकाला, वो मिला मुझे 0.678 मीटर। ट्रू डिफरेंस मैंने दोनों का निकाला दैट केम एज 0.801 मीटर। एलिवेशन मुझे निकालने के लिए 126.386 माइनस 801 करा, सो आई गॉट द ट्रू एलिवेशन ऑफ Q एज 125.585 मीटर। Now we will see the another type of direct leveling, that is profile leveling। अब हम एक और टाइप देखेंगे डायरेक्ट लेवलिंग का, दैट इज प्रोफाइल लेवलिंग। सो प्रोफाइल लेवलिंग का एक और नाम क्या होता है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग। अब ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग उसका नाम क्यों है दैट वी विल सी। सो प्रोफाइल लेवलिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिवेशंस ऑफ पॉइंट्स एट शॉर्ट मेजरमेंट इंटरवल्स अलोंग अ फिक्स्ड लाइन सच एज सेंटर लाइन ऑफ अ रेलवे, हाईवे और कैनाल। अब प्रोफाइल लेवलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी लेवलिंग है जिसमें कि हम एलिवेशन जिन पॉइंट का निकालेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, फिक्स्ड लाइन सच एज सेंटर लाइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे लाइन है, कोई हाईवे या फिर कोई कैनाल है। सो इनका जब हम लेवलिंग करेंगे तो यहाँ हमें इनकी प्रोफाइल जानने की जरूरत होती है, दैट वी विल डू बाय यूजिंग प्रोफाइल लेवलिंग। अभी जो पॉइंट्स होते हैं हम इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि सेंटर लाइन है तो वो कुछ भी डिस्टेंस पे हो सकते हैं, 4 मीटर पे, 5 मीटर पे, 10 मीटर, और जरूरी भी नहीं है कि सारे डिस्टेंस इक्वल हो। सो बट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, दैट मीन्स सेंटर लाइन पे अगर आप लेवलिंग कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप सेंटर लाइन पे ही सारे पॉइंट्स को मेजर करेंगे। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिवेशंस ऑफ पॉइंट्स एट शॉर्ट मेजर्ड इंटरवल्स। और जो इंटरवल्स हैं ये बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगे, दैट विल बी वेरी शॉर्ट। सो एट शॉर्ट इंटरवल्स अलोंग अ फिक्स्ड लाइन सच एज सेंटर लाइन ऑफ रेलवे, हाईवे और कैनाल। Next is the fixed line may be a single straight line or it may be composed of succession of straight lines। अभी जो फिक्स्ड लाइन है, सेंटर लाइन या जो स्ट्रेट लाइन में हम वर्क कर रहे हैं, ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और इट मे बी कंपोज्ड ऑफ सक्सेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और ये टुकड़ों में एक के बाद सक्सेशन मीन्स 1 by 1। सो 1 by 1 भी हो सकती है और एक सिंगल लाइन भी हो सकती है। थर्ड, by means of such sections the engineer is enabled to study the relationship between the existing ground surface and the levels of the post construction in the direction of its length। अब प्रोफाइल लेवलिंग या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग इंजीनियरिंग को कैसे हेल्प करती है। सो इसमें जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस है, जो एट प्रेजेंट जो ग्राउंड सरफेस है उसमें और जो प्रपोज आपने किया है उसमें कितना डिफरेंस है। अब ऐसा इससे क्या हेल्प हो रहा है, सपोज करिए अभी जो आपका ग्राउंड है उस बहुत अनड्यूलेटिंग है, बहुत ऊपर नीचे, ऊपर खाबड़ जिसे आप कहते हैं रेगुलर लैंग्वेज में, वैसा है। बट आपको जो प्रोफाइल मिली, जो आपको ड्राइंग मिली है, जैसा आपको प्रिपेयर करना है, वो एक बहुत ही नॉर्मल स्लोप है। सो अब आपको वहाँ पे सब जगह प्रोफाइल लेवलिंग करनी होगी, वहाँ से हम निकालेंगे कि मुझे कहाँ कितनी फिलिंग करनी है,
कहाँ कितनी कटिंग करनी है। सो एक अगर नॉर्मल ग्रेडियंट आपको प्रोवाइड करना है, सपोज फॉर रेलवे है, तो वहाँ पे बहुत स्टीप स्लोप नहीं दे सकते हैं, एक नॉर्मल स्लोप आपको देना होगा। सो दैट ऑल वी विल डू बाय यूजिंग व्हाट, दैट ऑल वी विल डू बाय यूजिंग प्रोफाइल leveling. So by means of such sections, the engineer is enabled to study the relationship between the existing ground surface and the levels of the proposed construction in the direction of its length. Next, we have the profile is usually plotted on specially profiled. The profile is usually plotted on a specially prepared profile paper on which the vertical scale is much larger than the horizontal. अभी जो हमने प्रोफाइल बनाई है, ये हम एक स्पेशल प्रिपेयर प्रोफाइल पेपर पे इसको प्लॉट करते हैं, और इसका जो वर्टिकल स्केल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल स्केल। ऑन द अबव मेड प्रोफाइल, जो प्रोफाइल हम स्पेशली प्रिपेयर्ड प्रोफाइल पेपर में बनाएंगे, वेरियस स्टडीज रिलेटिंग टू द फिक्सिंग इफ ग्रेड्स एंड द एस्टिमेटिंग ऑफ कॉस्ट आर मेड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम स्लोप वगैरह देखेंगे, एस्टिमेटिव कटिंग फिलिंग देखेंगे। सो कटिंग फिलिंग में भी कुछ कॉस्ट होगा। सो बेसिकली ये क्यों हो रहा है, फिक्सिंग ग्रेड्स एंड द एस्टिमेटिंग ऑफ कॉस्ट आर मेड। और भी डिफरेंट कॉस्ट का कारण हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ कटिंग फिलिंग के कारण ही कॉस्ट का हो, बट कॉस्ट कटिंग फिलिंग इज वन ऑफ द रीजन ऑफ कॉस्ट इन केस ऑफ लेवलिंग। सो दैट ऑल वी विल सी इन प्रोफाइल लेवलिंग। सो हमने देखा प्रोफाइल लेवलिंग क्या है, एक हम स्ट्रेट लाइन में हम लेवलिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग क्या क्या फंक्शन है, दैट ऑल वी हैव सीन। So in profile leveling, all these leveling or the determination of RL of different points is done similar to that of height of instrument or rise or fall method that we have seen in the spirit leveling. So just now we can see, जैसे कि here I can see in this example, this is 2 height of instrument is 212.500 and here back side is 2.005, you can see. So here you can see all the calculations are similar to that of rise and fall और height of instrument method। यहाँ हम देख पा रहे हैं बस थोड़ा सा जो चार्ट है लेवल फील्ड नोट, जो ये प्रोफाइल लेवलिंग की जो स्पेशल जो हमें पेज है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बस राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। बाकी ऑल दिस कैलकुलेशंस, ऑल द रिमेनिंग कैलकुलेशंस दैट यू हैव डन आर सिमिलर टू दैट ऑफ height of instrument and rise and fall method. So calculations that we are not taking in this video because that are similar to that of rise and fall and height of instrument method. Just the difference is that in that case height of instrument and rise and fall, there was no boundation of doing the leveling in some horizontal line or some fixed center line or somewhat, but in this profile leveling all the leveling is done in the some fixed line or some center line. This is a profile made after we have completed the profile leveling. This is the profile that we have made, cross section, or you can say profile. So what we can see, they have plotted all the points here. Suppose the second point that they have calculated is 209.820. So they have plotted that point here, 209.820. This was the point. So all points they have calculated and thus plotted in this diagram. So one thing is there that all the calculations that they are performing in profile leveling or longitudinal sectioning are similar to that of height of instrument or rise and fall method. So now we will see the last method of leveling, that is cross sectioning method. So cross sections are run at right angles to the longitudinal profile and on either side of it for the purpose of lateral outline of the ground surface. अब क्रॉस सेक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि हमने अभी लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल बनाई थी जिसमें हमने सेंटर लाइन पे लेवलिंग करी थी। अब सेंटर लाइन के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी जब हम एलिवेशंस निकालेंगे या लेवलिंग करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनिंग। अब इसमें क्या होगा, रोड का जो क्रॉस सेक्शन है वो हमें पूरा हम कैलकुलेट करेंगे और पूरा दिखेगा। लॉन्गिट्यूडनल में क्या कर रहे थे, बस एक सेंटर लाइन को हम मार्क कर रहे थे और उसी पे लेवलिंग कर रहे थे, लेकिन क्रॉस सेक्शनिंग में, इन क्रॉस सेक्शनिंग we will do on left side as well as on the right side of the center line of the railway or any canal wherever we are doing the surveying. So they provide the data for estimating quantities of earthwork and for other purpose. अब क्रॉस सेक्शनिंग में क्या होगा, ये हमें क्वांटिटीज बताएगी अर्थवर्क की। अर्थवर्क मीन्स कितना वहां पे टोटल फिलिंग रिक्वायर्ड है या जो भी रिक्वायर्ड है, दैट ऑल वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस क्रॉस सेक्शनिंग। पूरा क्रॉस सेक्शन आप वहां से कैलकुलेट
कर सकते हैं. In profile you were just calculating the elevations, but here you can calculate all the material in volume. You can calculate the earthwork. The cross sections are numbered consecutively from the commencement of the center line and are set out at right angles to the main line of section. Cross section शुरू से नंबरिंग चालू हो जाती है उसकी 1 2 3 you can number and they are set out at right angles to the main line of section. मेन लाइन है फिर जो सेंटर लाइन है उसके राइट एंगल्स पे लेफ्ट में और राइट में भी हम उसको मार्क करते हुए लेवलिंग करेंगे. क्रॉस सेक्शन में भी टेकन एट ईच चेन दैट मीन्स जैसे मान लीजिए आप 20 मीटर चेन यू आर यूजिंग, सपोज यू आर यूजिंग 20 मीटर चेन, सो आप क्रॉस सेक्शन हर 20 मीटर पे भी कर सकते हैं या जो भी जिस भी डिस्टेंस पे आप करना चाहें. सो क्रॉस सेक्शन में भी टेकन एट ईच चेन मीन्स एट ईच चेन लेंथ. सो द लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्क. अब जो लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो नेचर ऑफ वर्क, जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड करेगी द लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन. So now, as in the last video, we saw a arithmetic check for the rise and fall method and height of instrument method. That is summation of BS minus summation of FS. That is summation of backside minus summation of foresight is equals to the last RL minus first RL. So we will make that concept very crystal clear by solving this numerical. So in this question, it is given that in a leveling work, sum of the backside BS and foresight FS have been found to be 3.085 meter and 5.645 meter respectively. हमें जो समेशन दिया गया है बैक साइड का और फोर साइड का वो दिया गया है 3.085 मीटर समेशन बैक साइड एंड 5.645 मीटर समेशन ऑफ फोर साइड. इफ द रिड्यूस लेवल, अगर रिड्यूस लेवल पहले स्टेशन का, इफ द रिड्यूस लेवल ऑफ द स्टार्टिंग स्टेशन इज 100 मीटर, द RL इन मीटर ऑफ द लास्ट स्टेशन इज, अगर पहले स्टेशन का जो RL है या जो उसका जो रिड्यूस लेवल है वो 100 मीटर है तो हमसे बोल रहा है हम उसको लास्ट स्टेशन का RL बताएं. हमें इस क्वेश्चन में समेशन ऑफ बैक साइड दिया है, समेशन ऑफ फोर साइड दिया है और फर्स्ट स्टेशन का RL दिया है और हमें लास्ट स्टेशन का RL बताना है. तो मैं बहुत अच्छे से ये फॉर्मूला पता है, ये अर्थमेटिक चेक हम देख चुके हैं. दैट समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल्स टू द लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL. हमारे पास समेशन बैक साइड की वैल्यू है, ऑल दिस वैल्यूज हमारे सारी वैल्यूज हैं, समेशन बैक साइड है, समेशन फोर साइड है, लास्ट RL हमें निकालना है और फर्स्ट RL की वैल्यू भी हमारे पास है. वी आर हैविंग ऑल दिस थ्री वैल्यूज, ऑल वी वांट इज दिस लास्ट RL. सो आई विल पुट द वैल्यूज, गिवन वैल्यूज. सो समेशन बैक साइड गिवन टू मी इज 3.085 मीटर, समेशन फोर साइड इज 5.645 मीटर. सो आई विल पुट द वैल्यूज. लास्ट RL मुझे निकालना है, लास्ट RL इज अननोन and the first RL is 100 meter. So I have put all these values. The last RL if I will solve this equation, so I will get the last RL as 97.44 meter. So you can solve very easily such type of numericals, or you can apply this arithmetic check while solving the problems of rise and fall method and height of instrument method. So I have done nothing but just put the values of all these given values in the equation or this formula. So this numerical is from GATE in 2015. This was a 1 mark question from GATE. So you can see that the objective questions which are coming from surveying in competitive exams such as GATE also are very easy or not so tough. So you can solve all that questions also very easily. Thanks a lot for watching the video. If you have any doubt or any query, so you can contact me at this given mobile number, or you can mail me your doubt at the given email ID, that is robinsinggurjar@district.ac.in.